Bismillah Rahman Rahim. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. My first question is related to domestic and particularly related to the veterans of Pakistan military. There are several organizations operating in Pakistan, particularly 3 or 4 are very active and they are towing the political agenda. But most of the times they are portraying as an official or sometimes that they are registered with some defense organization or with GHQ or in official patronage of any army or any military organization. Recently, Lieutenant General retired Amjad Shoaib was arrested, and there was a lot of hue and cry, and mostly military was criticized, particularly Pakistan Army. So how do you see that particular aspect, whether they are the registered official organizations representing some Ministry of Defense or are registered in GHQ? Because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that this is also maligning Pakistan's military as they are towing some political agenda and they are portraying that they are might be registered somewhere? Secondly, related to Chief of Army Staff's China visit, there are reports that Pakistan Army is engaged with the China People's Liberation Army, as you have rightly pointed out, from the last many decades. And during this whole war against terror, most of the military hardware was consumed, or wear and tear is there, and particularly related to the gunship helicopters. So whether Army Chief is going to have finalize the old trodden or might be the historical agreement with the Chinese People Liberation Army or the production facilities regarding the Z-10 Zulu gunship helicopter, and along with that 155 millimeter howitzer guns and VT4, more VT4 for Pakistan Army, because military needs desperately some of the sophisticated hardware. Thank you very much, sir. جی جہاں تک چائنا کے دورے کی اور چائنا کا آپ کا سوال ہے، اس کی جو جزیات ہیں اور ڈیٹیلز میں ہم یہاں پہ جائے بغیر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑے روایتی دیرینہ اور بڑے پروفیشنل تعلقات ہیں، اور اس کی آئی تھنک کہ ڈیٹیلز میں جانے کی ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پروکیورمنٹ ڈیٹیلز کے اندر جانے کی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اس کی کوئی اس وقت یہاں ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک جاری و ساری عمل ہے، جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا. جو آپ نے سوال کیا ہے ویٹرنز کے بارے میں، دیکھیں یہ جو ویٹرنز ہیں یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے، یہ فوج کا اثاثہ ہے، آرمی کا بھی، نیوی کا بھی، ایئر فورس کا بھی، اور اس فوج پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے ان کی بے شباہ قربانیاں، اور ہم ان کو بڑا اکنالج کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے تینوں فوج میں، نیوی، ایئر فورس، آرمی، تینوں میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی اس کے لیے ایک مربوط طریقہ موجود ہے. اور اس کے تحت جو سا ہے آپ جو ریٹائرڈ ویٹرنس ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کے جو جنون ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، ان کی طرف متوجہ رہتی ہیں، فوج پاکستان بالکل توجہ دیتی ہے. جو ویٹرن آرگنائزیشنز ہیں تمام ممالک میں، ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ جو ویٹرنز کی جو فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی سیاسی یا کوئی کمرشل آرگنائزیشنز نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ، اور نہ ان کو ہونا چاہیے، کہ ویٹرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قانون پاکستان سے استثناء حاصل ہو جائے. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. اور ویٹرن آرگنائزیشنز کو اسی طرح سیاست کا لباتا نہیں پہننا چاہیے. سر نوید اکبر، آج ٹیلی ویژن سے. سر آپ کے پریڈیسیسر بھی اور موجودہ آرمی چیف بھی بار بار وہ انہوں نے کہا تو نہیں آن ریکارڈ، لیکن بار وہ اپنے جسچر سے یہ کہ آرمی جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، اور بالکل واضح ہے پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھ لیں تو کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان آرمی کی کوئی کسی قسم کی
वो मुदाखलत नहीं है, ना पाकिस्तान आर्मी वादे कर चुकी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस पोडियम पे खड़े होकर भी बारहा कहा गया। सर बात ये है कि उसके बावजूद पॉलिटिकल जमातें जो हैं, सियासी जमातें पाकिस्तान आर्मी को धकेलने की कोशिश करती हैं सियासत की तरफ, और ये इस तरह के बयानात दिए जाते हैं कि हम बात करेंगे और हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को मौजूद होना चाहिए, जब आर्मी है। और ख़ुद वो कहते हैं, कहने वाले इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, खुद कहते हैं एक तरफ के आर्मी जो है उसको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब पॉलिटिकल मुज़ाकरात हों या जब उनकी मौजूदा गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात, उसमें आर्मी बैठेगी। एक तो सर ये बड़ी ना समझ में आने वाली बात है, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डाल दें। दूसरा सर इलेक्शन के हवाले से अगर दूसरा क्वेश्चन कि आर्मी को अगर तलब किया जाता है तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी इस मौजूदा सिचुएशन जो है मशरकी और मगरबी बार्डर की, इससे उसमें है कि वो इतने जवान जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्शन के दौरान फोर्स की, तो वो फराहम कर सके। देखिए ये जो सियासत का आपने बातचीत की है, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये एक कौमी फ़ौज है। ये जो बात है जो कि आर्मी करती है, आर्मी चीफ की तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक मंतक है, उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप अक़वाम आलम में देखें तो किसी भी मुल्क में अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच, किसी ख़ास मज़हब, किसी एक ख़ास नज़रिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। ये एक हकीकत है। इसलिए जो पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी ख़ास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करें, रग़बत हासिल करें, जिस तरह हम किसी ख़ास एक मसलक या ख़ास इलाके की तरफ रजू नहीं होते। तो ये वक्त ये हमारी नहीं, ये इस पूरी मुल्क की और कौम की ज़रूरत है। और ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशा वाराना सोच को तक़वियत बख्शे। हाउएवर अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है, उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। आपने दूसरा सवाल के हवाले से फोर्स कितनी है? अच्छा क्योंकि पहले ईस्टर्न बॉर्डर पे भी है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी है, आईबीओ भी जारी है। जी इलेक्शन के बारे में यह है कि जो अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल, वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। जो हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो जो वजारत दफ़ा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है, जो कि हकायक जो उनसे हैं मुतहरिक भी होते हैं, उस पर मुबनी है, वो इनपुट जा चुका है। अस्सलाम सर, इश्तियाक गोंदल, रोज न्यूज़ से पूछना ये चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो ये आर्मी चीफ की तरफ से कोई पैगाम था, उनकी ख्वाहिश है, इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा सर, इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है, तहरीक इंसाफ और पीडीएम आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज अस्करी एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करेगी या बिल्कुल नहीं? देखिए ये जो ब्रीफिंग थी नेशनल असेंबली में, ये तो ऑन इन कैमरा ब्रीफिंग थी। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो ऑन रिकॉर्ड बात है। 31 दिसंबर 2022 पिछले साल की आखिरी दिन आर्मी चीफ कराची में नेवल एकेडमी की पासिंग आउट से बात करते उन्होंने ये कहा था, और उनकी ISPR की प्रेस रिलीज में भी है, कि इस वक्त मुल्क एक जो दुश्वार गुजार जो चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आजमा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। आई थिंक दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड सबके सामने ये बात